بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اسلام سے پہلے مدینہ اور عراق کے راستے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا۔ گو کہ عام عربوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی بت پرست اور سبا نام کی دیوی کی پرستش کرتے تھے، مگر عراق سے قریب تر ہونے کے باعث اب ان میں عربوں جیسی سادگی باقی نہ رہی۔ یوں مہمان نوازی، بہادری اور قبیلے سے وفاداری ان کا طرائے امتیاز تھا، مگر عام قبائل سے ہٹ کر ان کے چند خود ساختہ قانون تھے جن پر وہ جان دیتے تھے۔ ان کی سب سے پرانی اور عجیب رسم یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی بیٹی قبیلے سے باہر نہ دیتے، اور جسے قبیلے کا کوئی مرد قبول نہ کرتا اسے والدین خود دفن کر دیتے، کیونکہ قبیلے سے باہر بیٹی دینا سبا دیوی کی توہین تھی۔ سبا کہاں سے آئی تھی اور خمیدہ چٹان کے ساتھ چشمہ آب کے کنارے کب سے رہتی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس دن قبیلے کی کوئی لڑکی قبیلے سے باہر بیاہ دی گئی وہ دن سبا دیوی اور قبیلے کے لیے آخری دن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی بھی عام تھی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی بیٹی جزامہ بنو نصیر کے ایک لڑکے اصاف کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو طوفان یا باران کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا، اور جب تک اہل جعفر نے جزامہ کے باپ کو سبا کے سامنے لے جا کر پتھر مار مار کر ہلاک نہ کیا، یہ طوفان نہ تھما۔ یہ خیال سینہ بسینہ منتقل ہو کر اس قبیلے کا ایمان بن گیا، لہٰذا ہر سردار برسر اقتدار آتے ہی دیوی کے روبرو عہد کرتا کہ جعفر کے اس کہنہ رسم کو توڑنے اور قبیلے سے غداری کرنے والوں کی سزا سنگساری ہے۔ اس کا اطلاق سردار پر بھی ہوتا۔ جزامہ اور اصاف کے عشق کو شعراء نے خوب بھڑکایا، اور اس کے باپ کی المناک موت بھی لڑکیوں کے لیے عبرت بن گئی تھی۔ کچھ جذباتی قسم کے نوجوانوں نے دو بدصورت مورتیاں بنا کر پہاڑ پر نصب کر دی تھیں جن پر وہ باقاعدہ لعنت بھیجتے تھے۔ ان دنوں جعفر کا سردار حرب بن الحمی تھا، مگر 17 سالہ نعمان اس کا یتیم بھتیجا اس سے زیادہ ہر دل عزیز تھا۔ یہ قابل فخر جوان فن حرب میں ماہر، اہل علم اور اہل سیف، عکاظ کے میلے میں شریک ہو کر متعدد بار عرب کے سب قبائل سے مقابلہ جیت کر اس قبیلے کی شہرت کا باعث بن چکا تھا۔ نعمان جتنا حسین باطن تھا اس کا چہرہ اتنا ہی سیاہ اور حسن سے محروم تھا۔ وہ جعفر کی جانب سے عراق، شام، مصر اور عرب کے سب قبیلوں میں بغیر سے تجارت جاتا تھا۔ لوگ اس کے گو نہ گو اوصاف کے مداح تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ حرب بن الحمی کے بعد جعفر کا سردار وہی بنے گا، مگر وہ ہر چیز سے بے پرواہ، بے شمار خصوصیات میں بے خبر، حرب بن الحمی کی دختر جویریہ کو تصور میں بسائے اس کی چپ کے پرستش کرتا تھا۔ 13 سالہ جویریہ ضدی، الہڑ، کم سن حسینہ اس کی تمناؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ اسے کب سے چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہاں، اس کا چاندی جیسا نکھرا حسن دیکھ کر وہ یہ بھول جاتا کہ وہ خود کیا ہے۔ قبیلے کی اس رسم کے مطابق جویریہ اسی کی تھی۔ حرب بن الحمی نے ان دونوں کی پرورش ساتھ کی تھی، جس کے باعث قبیلے کا کوئی مرد جویریہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت نہ کر سکا تھا، لہٰذا وہ نعمان کی ملکیت تھی۔ اس نے اس کی پوجا کی تھی، اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ اس نے حرب بن الحمی سے چھپ کر اس کی ہر ضد پوری کی اور پھر مار کھائی، مگر شدید تکالیف اٹھا کر بھی وہ اس کی ستاروں جیسی چمکتی آنکھوں میں مسرت دیکھ کر اپنا دکھ بھول جاتا تھا۔ اس شدید عشق کے باوصف ایک عجیب سی بات تھی کہ جویریہ سے 1000 بار قریب ہونے کے باوجود نعمان کے جذبے نے آج تک الفاظ کا روپ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا مگر اظہار نہ کر سکتا تھا، یا شاید اس کے خیال میں کوئی لفظ، کوئی فکرہ یا کوئی تقریر اس انوکھے جذبے کی تشریح نہ کر سکتی تھی۔ بارہا اس نے چاہا کہ کہہ دے کہ جویریہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں،
ये फिक्रा मगर बेवज़न लगता। जवेरी, मैं तुमसे शदीद इश्क करता हूँ, तुम पर मरता हूँ। इस फिक्रे में जज्बात की पाकीज़गी महसूस न होती, तब वो कुछ कह भी न सकता। उसे महसूस होता कि दुनिया की कोई ज़ुबान उसके इश्क का इजहार नहीं कर सकती, और जब बार बार वो दिल की तर्जुमानी से कासिर रहा, तब उसने फैसला किया कि अभी जवेरिया से कुछ न कहेगा, बल्कि शादी की रात उसे बताएगा कि मेरी ज़िंदगी, मैंने उम्र की हर सांस में तुम्हें चाहा है। देखो, मेरी कलाई, पीठ, शानों, चेहरे और पेशानी के बेशुमार दाग इस इश्क के गवाह हैं। तब जवेरिया शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपाकर कहेगी, क्या मेरी ज़िद्दें और खुदसरी इस मोहब्बत की अलामत नहीं है जो मैं तुमसे करती हूँ? वो ये फैसला करके बड़ा मसरूर था और शादी का मुंतज़िर था। उस वक्त आफताब निस्फ़ नहार पर पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप में इमारत की दीवारों, खमीदा दरख्तों के पत्तों, मैदानों और पहाड़ों की बुलंद चोटियों से लपेटें सी निकल रही थीं। बाजार बंद और रास्ते वीरान थे। ऐसे में नुमान अपने अजीज़ तरीन इराकी दोस्त के साथ मसरूफ़ सफ़र था। अगरचे इराक से इस कबीले तक का फासला तय करना मामूली बात नहीं थी, मगर उनके घोड़ों पर बैठने का अंदाज और खुशगुफ्तारी से किसी किस्म की थकन का शायबा तक न होता। अलबत्ता नुमान के स्याह रंग और बड़ी बड़ी चमकदार और पुरखुलूस आंखों पर जम जाने वाली गर्द और उसके दोस्त अमार के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे और खमदार बालों से चिमटी हुई सहरा की रेत इस बात की शाहिद थी कि इन्होंने ये तवील रास्ता बड़ी उजलत से तय किया है। इनके अकब में चंद ऊँट और थे। अमार इराक का मशहूर नौजवान ताजिर था। तिजारत के लिए ये ताइफ और मक्का में आता था। अगरचे इराकी और मशरकी अरब कबीले के नौजवानों का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर नुमान की बहादुरी और खुलूस इस दोस्ती का सबब बन गई थी। चंद माह कबल जब अमार अपना माल लेकर अरब की हुदूद में सफ़र कर रहा था, तो उसे अचानक हर तरफ से बुद्धू ने घेर लिया, जो आमतौर पर लूट मार की कमाई पर गुजारा करते थे। हर समत से इस यलगार ने अमार के औसान खता कर दिए। उस वक्त एक स्याह शहसवार ने बुद्धों पर हमला करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। ये नुमान था जिसके एहसान ने उम्र भर के लिए अमार को खरीद दिया। जब से अब तक नुमान जितनी बार भी इराक गया, अमार के घर मेहमान ठहरा रहा। बहुत देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत और बातें करने के बाद अब वो दोनों खामोश बैठे थे। नुमान को चंद यौम कबल इराक में पेश आने वाला वाक़या याद आ रहा था, जब वो दोनों एक बार बारौनक बाजार से गुजर रहे थे कि एक मजूसी लड़की ने फिक्रा कसा। आहा, रात दिन किस आसानी से जमा हो गए। इस बात पर नुमान खिलखिलाकर हंस पड़ा, मगर अमार की पेशानी अर्क आलूद हो गई। उसने घबराकर कुछ इस अंदाज में उसे देखा जैसे नुमान की स्याह रंगत का बाइस वो खुद है, मगर वो उसे हंसता देखकर खुद भी धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, उफ़ो, ये मजूसी लड़कियां किस कदर बेबाक होती हैं। नहीं दोस्त, वाकई हमारी दोस्ती बड़ी गैर मुनासिब है। कहाँ तुम जैसा खूबरू ताजिर और कहाँ मुझ जैसा सिपाही। इस बात को याद करके नुमान अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने तिरछी निगाहों से देखा। अमार का हुस्न तवज्जो तलब था। वो हंसता तो उसके आरिज़ कुंदन हो जाते। ऐसे में नुमान को जवेरिया याद आ जाती। वो भी तो इसी तरह सुर्ख व सफ़ेद थी। उसके रुखसारों के नन्हे मुन्ने भंवर हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देते। ऐसे में उसका दिल चाहता कि जवेरिया को अमार से मिलवाए और कहे, देखो अमार, मैं साथियों के मामले में कितना खुशबख्त हूँ। मैं स्याह फाम हूँ तो क्या है, मेरे साथी तो हसीन हैं, मगर आज तक ऐसा मौका न आया। वो महवे तसव्वुर था कि अमार अपना घोड़ा नज़दीक लाते हुए बोला, क्या सोच रहे हो नुमान? सोचता हूँ मेरी मंजिल तो अब सिर्फ चंद कोस रह गई है, नुमान बोला। मगर क्या इस बार भी तुम जफीर में ठहरे बगैर गुजर जाओगे? नहीं, अमार ने कहा, मैं ताइफ में माल फरोख्त करके लौटूंगा तो चंद दिन तुम्हारे घर क़याम करूंगा। तुम्हारे चचा कबीले के सरदार हैं ना? हाँ, चश्मा जफीर के सामने खजूरों के दरमियान सबसे बुलंद मकान मेरा ही है, नुमान ने बताया। और यूं भी मैंने अपने घर वालों से तुम्हारा तारुफ करवा दिया है। तुमने उन्हें क्या बताया? अमार ने बड़े इश्तियाक से पूछा। बताऊं? नुमान शोखी से मुस्कुराया। मैंने उन्हें बताया कि दरमियाना कद, कसरती बदन, ताबनाक रोशन चेहरा, कायनात को तहोबाला कर देने वाली गहरी आंखें और ठोरी पर हुस्न का मुहाफिज
नन्हा सा दिल। ओफो, अमार जोर से हंसा। दोस्त बड़े ही हुस्न परस्त हो और तुम्हारे लिए तो बड़ी छानबीन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कबीले से बाहर शादियां नहीं करते, नुमान ने कहा। उस वक्त उसका दिल चाहा कि उसे जवेरिया के बारे में बताए। वो कितनी हसीन है, वो उसे कितना चाहता है, मगर आम आशिकों की तरह छिछोरपन से महबूबा का तस्करा करना उसे गवारा नहीं था। लिहाजा वो अमार को अपने कबीले की इस रस्म के बारे में बताने लगा। अमार हैरत से सुनता रहा। नुमान बोला, हमारे कबीले में रस्में तो बेशुमार हैं, मगर मेहमान के लिए कोई रस्म नहीं, लिहाजा बेफिक्र होकर आओ। हाँ, इस बार मैं तुम्हारा मेहमान बनने का फैसला कर चुका हूँ, अमार मुस्कुराया। खुशामदीद, नुमान ने खुशी से कहा। तुम मेरे कबीले में आकर बड़ी खुशी महसूस करोगे। दोनों गुफ्तगू करते हुए मकामे शराफ तक आ गए, जहाँ से सीधा रास्ता यसरब की तरफ जाता था और बाईं तरफ मुड़कर चंद कोस पर जफीर था। लिहाजा नुमान ने हाथ बढ़ाया और फिर दोनों जुदा हो गए। अमार ने घोड़ा बढ़ाया, नुमान घोड़ा मोड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब वो जूं-जूं आगे बढ़ रहा था, अजीब सी कैफियत हो रही थी। यहाँ पर हर टीले, हर चट्टान, हर जगह से जवेरिया की याद वाबस्ता थी। इन दोनों ने इन्हीं मैदानों में खेल कूद कर बचपन गुजारा था। इसी जगह आगे पीछे दौड़ते हुए नुमान ने गिरकर चोट खाई थी और उसका दाग आज तक मौजूद था। इन्हीं चट्टानों के दामन में तीरंदाजी सीखते हुए जवेरिया ने तीर चलाया था, जो नुमान की बाईं कलाई में हड्डी काटता पेवस्त हो गया था। उसे याद था, कई दिन लगातार तबीब ने मरहम पट्टी की और जवेरिया ये जख्म देखकर रोती थी। सामने वाला बुलंद पहाड़ भी उसकी मासूम मोहब्बत का गवाह था। वो दिन उसे बखूबी याद था जब जवेरिया ने हर बिन अलहमी से उसे इस पहाड़ पर चढ़ने की जिद की थी। उसकी डांट सुनकर देर तक वो रोती रही। उसी शाम नुमान उसे लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। निस्फ रास्ता तय करने के बाद उसने जवेरिया को कमर पर लाद कर ये बुलंदी उबूर की थी। फिर वो थक कर नीचे उतर आए, मगर इन्होंने देखा कि हर बिन अलहमी नीचे उनका मुंतज़िर खड़ा है। उस रात उसने नुमान को शदीद मार लगाई। कई दिन तक उसका अंग अंग दुखता महसूस हुआ, मगर जवेरिया के तस्वुर में हर दुख तहलील हो गया। उस वक्त अहदे रफ्ता की याद में गुम उसका दिल चाहा कि बचपन के वाक़यात पर खिलखिला कर हंसे, मगर वो मुस्कुरा कर रह गया। सुर्ख लेकिन पुरखलूस आंखें खुशी से चमक रही थीं। जवेरिया के तस्वुर ने उसे बेखुद कर दिया। इस तरह उसकी हर बात सुनकर वो यूं बेखुद हो जाता। ऐसा क्यों था, उसे कुछ इल्म नहीं था। जवेरिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल कट जाता था, और फिर वो हमेशा ही उसकी गहरी आंखों में छलकते आंसू देखकर ज़ेरे आब जैसे कश्तियाँ डूबती हैं यूं महसूस करता, जिन्हें जान देकर भी डूबने से बचा लेता। घोड़ा आहिस्ता खरामी से चला जा रहा था। उसके हवास पर जवेरिया सवार थी। इस कड़ी धूप और तेज हवाओं के बावजूद वो खुद को बड़ा पुरसुकून महसूस कर रहा था। उसका दिल चाहा कि वो जब घर में दाखिल हो तो हमेशा की तरह जवेरिया उसके शाने से लगकर पूछे, नुमान, मेरे लिए क्या लाए हो? तब वो उसे प्यार से थपथपाकर कहे, जवेरी, इस मर्तबा तुम्हारे लिए बड़ी कीमती चीज़ लाया हूँ। देखो, याकूती बालियाँ और लंबी माला। तब वो हस्बे मामूल उसी वक्त सिंगार करे, बाल संवारे और जेवर पहनकर पूछे, नुमान, मैं कैसी लगती हूँ? तो वो प्यार से कहे, तुम मुझे कैसी लगती हो ये मैं खुद को कभी नहीं बता सकूँगा। मगर अपने इस तस्वर पर वो खुद ही हंस दिया। आज तक मोहब्बत का एक बोल भी जवेरिया के सामने नहीं बोल सका था। वो ख्यालात में मुस्तगरिक था कि अचानक घोड़ा रुक गया। उसने चौंक कर देखा तो उसी चट्टान के सामने खड़ा था जहाँ सबा की देवी रहती थी। नुमान तेजी से घोड़े से उतरकर सबा के आगे अकीदत से झुक गया। फिर वो देर देर तक उसके जिस्म पर हाथ फेर फेर कर दुआएं मांगता रहा। कबीले के सभी लोग सफ़र की इब्तिदा और इंतहा उसी के दीदार से किया करते थे। नुमान ने सबा से न जाने क्या मांगा और फिर दोनों हाथ मुंह पर रखकर आगे रवाना हो गया। ये शाम का वक्त था जब बस्ती के सभी लोग कबीले के सरदार के मकान के बाहर जमा थे। यहाँ हर रोज महफिल जमती थी। किसी की शादी होती या मौत, अमूरे जंग होते या दीगर रसूम, सब इसी जगह जमा होकर फैसले करते। उस वक्त अहले कबीला नुमान से मिलने के लिए आए थे। कहलान बूढ़ा
पादरी जो हर साल जफीर की जानिब से खाना काबा में मबूत आज़म हेबल के सामने कुर्बानी करने जाता और साल भर के लिए फाल निकालता। इसकी कोई मजहबी हैसियत नहीं थी, मगर वो कबीले का सबसे मोमर आदमी था। याकूब जफीर का मशहूर संग तराश, जिसने गुज़श्ता बरस एक मूर्ति बनाकर कसा को बतौर तोहफा दी थी, जिसने खाना काबा में जगह पाई थी, उस दिन अहले जफीर ने अपने इस फनकार के हाथ चूमे। मुनसफ कबीले का नामवर शाहिर अरब के मेलों में जा जाकर अपने शेर सुनाता और दाद वसूल करता। इन तीन के अलावा और भी बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन थे। कहलान बोला, नोमान, इस मर्तबा तुम इराक से माल खरीद कर नहीं लाए? नहीं, नोमान ने जवाब दिया, अब मैं आम माल की नहीं बल्कि सामाने हर्ब और घोड़ों की तिजारत करना चाहता हूँ। इस बात पर हर्ब बिन अलहमी ने सबको फख्र से देखा। कहलान ने पूछा, इस काम की इब्तिदा कैसे करोगे? इस साल में अरब के तमाम कबाइल का दौरा करूँगा और गुजारिश करूँगा कि सामाने हर्ब बाहर से खरीद कर लाने के बजाय हमसे खरीदें। अगर वो राज़ी हो गए तो मैं मिस्र, इराक और शाम से हथियार और घोड़े खरीद कर जफीर लाया करूँगा। इस लेन देन से हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। हमने सुना है कि तुम लबनान से शहीद भी मंगवाने वाले हो, याकूब ने पूछा। हाँ, वो अब मैंने अपने कबीले के लिए मंगाया है, नोमान ने जवाब दिया। लेकिन जफीर, मैं सामाने हर्ब की तिजारत से बहुत से कबीलों को फ़ायदा देना चाहता हूँ। सब खामोशी से सुन रहे थे। नोमान ने अपनी बात की वजाहत की। दरअसल मैं इस तिजारत के साथ अपने कबीले के नौजवानों को मुनाजिम करना चाहता हूँ, ताकि हमारी अपनी एक ताकत हो, क्योंकि हमारा कबीला इराक की हुदूद में है और अरब के शुमाल मशरकी इलाकों में बसने वाले लोगों को अब एक नई मुश्किल दरपेश है। जो कबाइल शाम की हुकूमत के ज़ेरे नगी हैं, वो कैसर और ईरान के ज़ेरे असर हैं। इन्हें कसरा गुलाम की जंजीरी पहना देना चाहता है, और चूंकि ये कबाइल किसी न किसी तौर पर उनके परवरदा हैं, लिहाजा ये दोनों हुकूमतें बहरे सूरत उन्हें अपना हल्का बगोश बनाने के दर पे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा वक्त आने से कबल जफीर को मजबूत कर लूँ, ताकि वो ईरानियों से मुतासिर न हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हर तरफ से आवाज़ें आईं। उस वक्त हर्ब बिन अलहमी का सर फख्र से बुलंद हो गया। वो अपने भतीजे के ख्यालात जानकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। हर फर्द नोमान की तारीफ में रत्बुल लिसान था। आखिर थोड़ी देर बाद वो उठकर अंदर चला गया तो कहलान हर्ब बिन अलहमी से गोया हुआ, सरदार, आपका भतीजा गैर मामूली नौजवान है। मैंने पूरी एक सदी गुजारी है, मगर जफीर के किसी मर्द ने कभी ऐसी बात नहीं सोची। वो हमारे कबीले का सबसे वफादार नौजवान है। हाँ, मुनसिब बोला, मैं नोमान का कसीदा लिखूंगा। वो जितना काला है उसका दिल उतना ही साफ है, मगर मैंने सुना है कि उसकी दोस्ती एक इराकी से है। क्या वो इराकी को मेहमान बनाएगा? याकूब ने एतराज़ किया। मेहमान तो कोई भी हो सकता है, तो किसी को रोक सकता है? हर्ब ने कदरे तहकीर से कहा। इस बात पर सब लोग उसे तस्हीक आमेज़ अंदाज में देखने लगे। वो कुछ खफीफ सा हो गया। मेरा ये मतलब तो नहीं था। इधर ये बातें हो रही थी, उधर नुमान जवेरिया से महवे गुफ्तगू था। जवेरी, तुमने मुझे कितना याद किया? हाँ, याद तो किया था, वो सादगी से बोली। आपको तो सभी याद करते हैं। नुमान ने उसके दमकते हुए चेहरे और नन्हे नन्हे गढ़ों को बड़े इश्तियाक से देखा। जवेरिया ने कहा, ज़ैनब कहती है इराक में बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, आप इसीलिए बार बार वहाँ जाते हैं। नुमान को उसकी बात पर बड़ी हंसी आई। औरत ख्वाह किसी भी उम्र की हो, मर्द पर शक करना उसकी फितरत होती है। वो सोचकर मुस्कुराया। बेशक वहाँ बड़ी हसीन लड़कियां हैं, पर वो जवेरिया जैसी हसीन थोड़ी होती हैं। इस तारीफ पर वो शर्मा सी गई। नुमान का दिल चाहा कि उसे बाजू में भर कर कहे, जवेरिया, मुझे अब किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। तुम्हें देखने के बाद मैंने हर तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, इतना कि तुम अगर ना मिल सकी तो जिंदा नहीं रहूँगा। मगर वो संभल गया। उसकी सच्ची मोहब्बत और पाकीज़ा जज्बात इन आम से अल्फाज के काबिल नहीं थे, लिहाजा उसने बात बदली। कबीले की कोई नई बात सुनाओ, मेरे पीछे क्या क्या होता रहा है। फिर जवेरिया उसे चटपटी बातें सुनाती रही। वो उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता रहा, हंसता रहा और सोचता रहा कि मेरी जवेरी किस कदर हसीन है। शाम का वक्त था। आफताब अपनी आखिरी किरणें कायनात पर निसार कर रहा था।
हसीन बुलंद दरख्तों, पहाड़ों की चोटियों और हरबिन अलहमी के मकानात के ऊंचे किंगरों को रोशन कर रहा था। उस वक्त जवेरिया चश्माए आब के किनारे एक पत्थर पर बैठी गुरूब आफताब का नज़ारा कर रही थी। अमूमन वो कभी नुमान के साथ इस जगह आती, मगर आज खिलाफे मामूल वो तन्हा किसी ख्याल में गर्क बैठी पानी में उंगलियां डुबो डुबो कर इधर उधर छींटे उड़ा रही थी। डूबते सूरज की किरणें उसके रुए ताबनाक पर गज़ा बनकर बिखर गईं। उसकी दराज जुल्फ़ें खुली हुई थी। देखने वालों को महसूस होता कि माह कामिल बादलों की ओट से निकलकर झांक झांक कर दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। ये नो उम्र साहिरा दुनिया से बेखबर न जाने किन ख्यालात में गुम थी कि यकायक घोड़े की टापों की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, जो करीब से करीब तर आ रही थी। इसका मतलब था कि आने वाला इसी समत आ रहा है। जवेरिया सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है, जबकि हरबिन अलहमी कबीले से बाहर गया हुआ था, जिसकी वापसी कल से कबल किसी तरह मुमकिन नहीं थी, और नुमान मुहलिब के बेटे पर से जिन उतारने के लिए गया था। जब किसी पर आसिफ का साया होता तो कबीले के जवान उसके घर के दरवाजे पर जमा होकर गधे की आवाज़ निकालते, जिससे भूत प्रेत और जिन भाग जाते। जवेरिया जानती थी कि नुमान तो तारीकी फैलने के बाद ही आएगा। शहसवार नज़दीक आता जा रहा था। वो उसे गौर से देख रही थी। यकायक पहाड़ के अकब से वो अपना घोड़ा उस राह पर लाया तो चश्मे के किनारे इस कमसिन साहिरा को देखकर उसके हाथों से लगामें छूट गईं। वो मुजस्समाए हुस्न को आंखें छपक छपक कर देख रहा था, और जवेरिया उसे, वो पैकरे हुस्न वजाहत कौन था उसे मालूम नहीं था, मगर उसका मर्दाना जमाल उसे मशहूर कर चुका था। बड़ा सर, सफ़र से मुंतशिर खमदार छोटे बाल, कुशादा रोशन जबीं, हल्की गोलाई लिए किताबी चेहरा, सुर्खी माइल सफ़ेद रंग, बारीक गुंजान जुदा जुदा अबरू, जिनके नीचे गहरी ज़हीन आँखें और गोशाए चश्म से देखने और निचले लब को दांतों तले दबाने का अंदाज उसकी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो वाकई उसे देखकर हैरान था। जवेरिया को लगा कि आफताब डूबते डूबते फिर उभर आया। न जाने ये मर्दाना रोब हुस्न था या अंदाज़े दीद का असर कि वो घबरा कर खड़ी हो गई। तब फौरन ही जैसे उसे भी होश आ गया, वो बसदे एहतराम घोड़े से उतरा, उसके करीब आया और कदरे झुक कर बोला, ए हुस्न की देवी, अमार तेरी खिदमत में सलाम पेश करता है। जवेरिया ने चौंक कर देखा। नुमान ने मुतादिद बार अपने इराकी दोस्त का जिक्र किया था, लिहाजा वो धीरे से बोली, अमार, नुमान के दोस्त? जी हाँ। अमार सरुकत खड़ा होता मुस्कुराया। आपको देखकर मैं समझा कि मेरे दोस्त के कबीले में यहाँ पर वही देवी नस्ब है जिसकी सब परस्तिश करते हैं। अगर चंद लम्हे और हरकत करके अपने इंसान होने का सबूत न देती तो मैं पूजा शुरू कर देता। जवेरिया हया से सुर्ख हो गई। उसने अपने हुस्न की ऐसी तारीफ पहली बार सुनी थी। नुमान ने तो कभी भी इस अंदाज में बात न की थी, मगर अमार के अल्फाज और अंदाज से उसका दिल धड़क रहा था। चुपचाप खड़ी पलकें झपक रही थी। वो उसका दीदार कर रहा था, और एक दूसरे की गैर मामूली खूबसूरती से मुतासिर तो दोनों ही थे, लेकिन इजहार ख्याल में हया माने थी। ये और बात थी कि अमार तहसीन और आफरीन के मामले में बखील नहीं था। जुबान से न सही, निगाहों से दाद दे रहा था, और जवेरिया उम्र में पहली मर्तबा मर्द की आंखों में मदहोश कुन सताइश महसूस करके खुद भी बहक रही थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। अमार शरारत से बोला, क्या आपके कबीले में मेहमान को इस चश्मे से आगे जाने की इजाज़त नहीं? इस सवाल पर जवेरिया बुरी तरह शर्मिंदा हुई। फिर फौरन ही शोखी से बोली, हमारे कबीले का हर घर मेहमान के लिए खुला है, मगर जो मेहमान रास्ते में ही फिसल जाए उसे सहारा देकर मंजिल तक ले जाइए। अमार ने कहा, और इस हाजिर जवाबी पर जवेरिया शर्मिंदा हो गई। आइए, उसने बमुश्किल घर की तरफ बढ़ते हुए कहा। अमार उसके सुर्ख आरिस देखकर महसूस हो रहा था। उसने अपने घोड़े की बाग पकड़ी और पीछे चल दिया। उस वक्त उसकी अजीब कैफियत थी। जवेरिया का हर हर अंदाज उसे मुतासिर कर रहा था। उसकी शोखी, शर्मो हया, मदहोश कर देने वाले हुस्न ने उसका सब कुछ लूट लिया था, लेकिन वो थी कौन उसे इल्म नहीं था। लिहाजा धीरे से बोला, क्या पुजारी को देवी के बारे में जानने का कोई हक नहीं?
जवेरिया ने सताइश भरी नजरों से उसे देखा। किस अदा से उसने हरफ मुद्दा अदा किया था वो उसे आम मर्दों से मुख्तलिफ नजर आया। नुमान बिलाशुबा एक बहादुर और आला मर्द था, मगर उसने कभी इस वालिहानापन का इजहार नहीं किया, बल्कि वो तो शायद जज्बाई इश्क से भी वाकिफ नहीं था। उसके अल्फाज में ऐसा जादू न था, जबकि अमार सरापाई जादू था। उसने कुछ शर्मीलेपन से देखा और बोली, मैं सरदार कबीला हर्ब बिन अलहमी की दुख्तर नुमान की होने वाली बीवी जवेरिया हूँ। ओह, तो खाकसार आपका मेहमान है। अमार खुशी से बेकाबू हो गया। जवेरिया उसे घर लाई, नुमान के हवाले किया और मेज़बानी के तमाम फ़राइज़ अदा किए, मगर शब भर सो नहीं सकी। दिल के गोशे गोशे से अमार अमार की सदाएं आ रही थीं। सीने में रह रह कर दर्द सा उठ रहा था। बेकली बेकरारी उसके दिल को दुखा रही थी। वो कभी परेशान होकर इधर उधर देखती, गाहे आंखें बंद कर लेती, मगर एक ही तसव्वुर था, एक ही ख्याल था, जिससे बचने के लिए वो बार बार सर झटक देती और कहती, जवेरिया, जफीर में इश्क करना गुनाह है। तू जफीरी है, अमार इराकी, उसे भूल जा। आंखों ने खता की है, दिल को सजा न दे। किसी अजनबी को इसमें आबाद न कर, वरना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मगर दिल मानने वाली शय नहीं, जब मचलता है तो मचलता ही चला जाता है। यूं तमाम शब वो तड़पती रही, कल्बे मुस्तर को समझाती रही, हत्ता कि सुबह हो गई। वो हमेशा से कबल बिस्तर से उठी तो अक्ल का इसरार था, जवेरिया, अमार का सामना न करो, वरना जजामा और इसराफ की दास्तान दोहराई जाएगी। सबा का अजाब नाजिल होगा, मगर दिल बज़िद था कि चल उसी बुत-तनाज़ की आंखों में झांक जहाँ सिर्फ तू ही तू है। आखिर जज्बात गालिब आ गए। जवेरिया ने गैर इरादी तौर पर खुद को आहिस्ता किया, दराज गेसों को नए अंदाज से संवारा, सुर्ख लिबास के हमरंग बालियां पहनी और उस कमरे में चली गई जहां नाश्ते पर नुमान और अमार उसके मुंतज़िर थे। बड़े तख्त पर तकिए से टेक लगाए सफ़ेद इराकी रेशमी लिबास में मलबूस अमार की शान शहजादों जैसी थी। जवेरिया दरवाजे में रुक गई। अमार ने नजरें उठाकर देखा और देखता ही रह गया। इन आंखों में वालिहानापन था, मोहब्बत थी, तारीफ थी। जवेरिया धड़कते दिल को संभालते हुए कमरे में दाखिल हो गई, जहां तख्त की दूसरी जानिब नुमान बैठा, शायद उसी का मुंतज़िर था। उसने जवेरिया को देखा। उसकी आंखों में तारीफ और सताइश थी, न हैरत और मोहब्बत, बल्कि शाइस्तगी, शफकत और पाकीज़ा जज्बात का मिला जुला अक्स था। लबों पर फातिहाना तबस्सुम था। उसकी जवेरिया जफीर की सबसे हसीन लड़की थी। जवेरिया ने उसे देखा। कितना फ़र्क है इन दोनों में, उसने सोचा। एक जानिब मोहब्बत थी, बेताबी थी, प्यार था। दूसरी जानिब बरसों से रूखा फीका नर्म रवैया। एक तरफ मर्दाना वजाहत, आन बान, और दूसरी तरफ शुजाअत, बहादुरी और दौड़ दौड़ कर दूसरों की खिदमत करने का जज्बा। उस वक्त अमार ने उसे फिर देखा। उसका रोशन चेहरा अंदरूनी जज्बात की गर्मी से कुछ गुलाबी हो रहा था। आंखों में चाहत थी। वो धीमे लहजे में बोला, तशरीफ़ रखिए। उस लम्हा लाशऊरी तौर पर जवेरिया ने नुमान को देखा। हमेशा की तरह सादगी से मुस्कुराया और नरमी से बोला, आओ जवेरिया, तुमने बहुत देर कर दी, क्या रात नींद नहीं आई? जवेरिया ने चौंक कर अमार को यूं देखा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। वो अभी तक उसे देख रहा था। उनकी आंखों में इश्क का बहरे बेकिरान ठाठे मार रहा था। उसने घबरा कर नजरें चुरा ली। उस दम एक लम्हे के लिए नुमान के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अमार से जवेरिया का असल तारुफ करवा दे और कहे, देखो अमार, ये हसीन और कोमल साहिरा मेरी मंसूबा है, बचपन की मंगेतर, मेरा पहला प्यार, शायद आखिरी भी, क्योंकि मैंने इसे देखकर फिर किसी को नहीं देखा। मैं इसे टूट कर चाहता हूँ, इतना कि इसके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं करता। मगर ये सब कहने से कबल उसने जवेरिया की तरफ देखा, जिसकी आंखें हया के बोझ से झुकी हुई और पलकें लरस रही थीं। गाल लिबास के अक्स से दहकते हुए अंगारों की तरह दो आतिशी हो रहे थे और वो अपने याकुती लब के दाएं गोशे को काट रही थी। नुमान ने यह अंदाज देखा, झूम गया। तभी जवेरिया खिलाफे मामूल उससे काफ़ी फासले पर बैठ गई। उसके दिल ने सरगोशी की, नुमान, वो शर्मा रही है, तुम इसका असल रिश्ता न बताओ, वरना उसकी हया इस बात की मुतहम्मिल ना हो सकेगी। तब वो संजीदा से अंदाज में अमार के लिए बड़े प्याले में शहद निकालने लगा। उसकी खामोशी हमेशा की तरह
इजहार इश्क में माने रही। इस बार फिर जवेरिया ने धीरे से नज़र उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक जामिद सुकूत था। उसे ये मर्द बड़ा अजीब सा लगा, जिसने कभी चाहत के दो लफ्ज़ न कहे, जिस हुस्न ने चंद घंटों में अमार को उसका दीवाना बना दिया, उसे नुमान ने कभी न सराहा। ये सोचते हुए जवेरिया ने अमार की जानिब देखा। वो ज़िंदगी भर की तमन्नाओं का अक्स आंखों में लिए उसी को देख रहा था। निगाहों के इस लतीफ़ टकराव से जवेरिया बुरी तरह घबराई और करीब खड़े दस्त बस्ता गुलाम से बोली, काब, मेहमान के लिए साहिबा का दूध लाए हो ना? काब ने क्या जवाब दिया अमार को खबर नहीं थी, मगर उसे महसूस हुआ कि कमरे में घंटियां सी बज गई। उसका दिल चाहा जवेरिया फिर बोले, लिहाजा उसने पूछा, साहिबा का दूध मतलब? मगर जवेरिया के बोलने से कबल ही नुमान ने वजाहत की, हम अरबों में जो ऊँटनी 10 मादा बच्चे देती है, हम उसे आज़ाद कर देते हैं, फिर न उस पर सवारी करते हैं, न बोझ लाते हैं, न उसके बाल काटते हैं, उसका दूध ख़ास मेहमानों को पिलाते हैं, उसी ऊँटनी को साहिबा कहते हैं। तो मैं ख़ास मेहमान हूँ? अमार ने शोखी से उसे देखा। तुम क्या जानो तुम क्या हो? सादालू नुमान ने मोहब्बत से अमार की जानिब देखा। इस बात पर जवेरिया पलकें झपका कर रह गई। उस दिन हर बिन अलहमी लौट आया। उसने भी अमार से मिलकर बड़ी खुशी का इजहार किया, मगर जवेरिया की कैफियत अजीब थी। जब तक वो अमार के सामने रही, अमार की चश्म फसूं सांस ने कुछ उसे सोचने नहीं दिया, मगर रात फिर क़यामत बनकर आई। वो तमाम शब उस मोहब्बत के अंजाम पर गौर करती रही। जब अगली सुबह अमार ने मिजाज पुरसी की तो उसकी मुतरम और बेदारी की खुमासी करने वाली आंखें देखकर हैरत का इजहार किया। वो कुछ भी न कह सकी, अश्क पी कर रह गई। उस दिन नुमान ने अमार के एजाज़ में अपने घर में महफिल जमाई, जिसमें जफ़ीर के सब लोग जमा थे। नुमान ने ऊँट ज़िबा किया, भुने हुए गोश्त और शराब से सबकी खातिर तवाज़े की। फिर रात गए तक खेल तमाशे होते रहे। मनसब अपनी शायरी और जज़ामा और असाब की इबरतनाक दास्तां सुनाता रहा। ख़वातीन उसके बाप के अंजाम पर रोती रहीं। फिर अमार ने इन सब को अपना कलाम सुनाया। यूँ ये महफिल इख्तिताम को पहुँची। सब थक हार कर सो गए, मगर ये रात जवेरिया के लिए हमेशा से ज़्यादा सख्त थी। आज सिर्फ अमार की मोहब्बत का तसव्वुर ही परेशान कुन न था, बल्कि जज़ामा के बाप का अंजाम भी ताज़ा हो गया। वो क्या करे, किससे कहे? अमार ने हर चंद ज़ुबान से कुछ न कहा था, मगर उसके मायने खेस अंदाज और निगाहों के ज़ाविये यकीन दिला रहे थे कि जवेरिया, वो तुमसे इश्क करने लगा है। इश्क जो हुस्न की अव्वलीन ख्वाहिश थी, मगर इस मोहब्बत की तकमील में जफ़ीर की अजीबो गरीब रस्म हाइल थी। अमार की मोहब्बत का जवाब देने का मतलब हर बिन अलहमी की मौत और हर्ब की चाहत का मतलब अमार से दायमी जुदाई, जिसके बाद नुमान जैसे खुश्क और बेहिस मर्द की रफ़ाकत। जवेरिया ने हर पहलू से सोचा, फूट फूट कर रोई, बेताबी से अश्क बहाए। सितम रसीदा शब उस पर से गुजर गई। तीसरे दिन अमार उसे अनोखा दर्द देकर रुखसत हो गया। बड़ा अंदुनाक वक्त था। दोनों खामोश थे, मगर दोनों ही निगाहें सारे राज उगल रही थीं। उन्हें दुख था कि वो कुछ कह ना सके। नुमान और जवेरिया अपने मेहमान को जफ़ीर की हद तक रुखसत करने गए। वो नुमान से बगलगीर हुआ, उचटती सी नज़र जवेरिया पर डालकर बोला, दोस्त, ये लम्हे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। जवेरिया एकदम उदास हो गई, मगर नुमान हंसकर बोला, फरामोश तो तब करोगे जब फिर ना आओगे, और ये नामुमकिन है कि इधर से गुजरते हुए हमें भूल जाओ। हाँ, ये ठीक है, नुमान ने कहा, और जवेरिया ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मोअज़्ज़िज़ जवेरिया, क्या आप इराक से कुछ मंगाना चाहती हैं? क्योंकि मैं चंद यौम तक माल लेकर फिर यस्रब आऊँगा। बकौल नुमान के जफ़ीर को नज़रअंदाज कर देना मुमकिन नहीं होगा। जवेरिया का दिल बड़ी तेज़ी से धड़का। अमार की निगाहों का टकराव, फिर आने का वादा मामूली बात नहीं थी। वो बोली, जफ़ीर के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं आपको फिर आने की दावत देती हूँ। जहाँ तक फरमाइश का ताल्लुक़ है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मसरूर कुन आप जैसे मेहमान की आमद ही हो सकती है। उस वक्त नुमान बड़ी मसरत से उसे देख रहा था, जिसने उसके अजीज़ दोस्त को अजीज़ समझा था। अमार ने आखिरी नज़र उस पर डाली और चला गया। जब तक वो नज़र आता रहा, वो दोनों उसे देखते रहे। फिर कबीले में लौट आए, मगर इन राहों पर चलते हुए जवेरिया को महसूस हो रहा था कि वो लड़की नहीं जो 4 दिन कबल यहाँ घूमा करती थी, बल्कि वो कोई और है जिसका नुमान से कोई ताल्लुक़ नहीं।
वो इससे मीलों करनों के फासलों पर बैठी है और इनके दरमियान इतनी दूरी हायल हो चुकी है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। जवेरिया की फितरत का अजीबो गरीब इनकलाब सादा लू नुमान के लिए बड़ा हैरान कुन था। वो हमेशा मलूल नजर आती। नुमान हजार पूछता, इसरार करता, मगर जवेरिया को क्या हो गया था, ये बात उसकी समझ से बालातर थी। उस वक्त भी वो कबीले में गश्त लगाते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। आज उसे कबीला कुरैश में जाकर बात करना थी। वो जल्द अज जल्द इराक की सरहद पर वाक़े कबीलों को महफूज और मुनज़्ज़म कर लेना चाहता था, मगर चंद दिनों से जवेरिया की हालत में अचानक तब्दीली उसके लिए बाइस तशवीश थी। उस वक्त वो घर की जानिब बढ़ते हुए पिछले सफ़र के बारे में सोच रहा था। जब कभी वो रवाना होता, जवेरिया उसकी तैयारी करती, उसे छोड़ने घर से बाहर तक आती और बेशुमार फरमाइशें करती। लबनान जाता तो शहद मंगाती, इराक से आराइश जमाल की अशिया और शाम से नित नए मलबूसात। अब तो ये चीज़ें नुमान को अजबर हो गई थीं। जवेरिया को फ़ख्र था कि कबीले की तमाम लड़कियों से ज़्यादा लिबास और जेवरात उसी के पास हैं। पिछले वर्ष जफीर में जिसके भी सांप ने काटा था, जवेरिया ने अपना सोने का जेवर उसे भेजा था। लोग 3-3 यौम उसका जेवर पहनते और जब सांप का असर ज़ाइल हो जाता तब वापस कर देते। इस बात पर जवेरिया मसरूर होती थी। ये तसव्वुर करके नुमान मुस्कुरा रहा था, मगर अब चंद दिन से जवेरिया ने हार सिंगार करना, बनना सवरना सब छोड़ दिया। वो अक्सर खोई खोई सी और उदास सी रहती। नुमान फिर मलूल हो गया। इन्हीं तसव्वुरात में गलतां घर में दाखिल हुआ। अब वो बददस्तूर उसे कहीं नजर न आई तो उसने आवाज़ें देने या काब से इस्तफसार करने के बजाय खुद उसके कमरे का रुख किया। उसने देखा वो दरवाजे की जानिब से पुश्त किए बिस्तर पर दराज थी। उसके दराज घने उलझे से गैसू कमर से होते हुए नीचे तक फैले हुए थे। नुमान उसे बड़े दुख से देखता रहा। इसे क्या दुख है, क्या गम है और क्या चाहती है? उसका दिल चाहा कि अपनी जान देकर भी उसे खुश कर दे। उसने आहिस्ता से उसे पुकारा तो वो चौंक गई। नुमान ने महसूस किया था कि वो बहुत देर तक रोती रही है। वो बेचैन सा हो गया। तुम्हें क्या हो गया है जवेरी, कुछ तो बोलो। नुमान ने बेचारगी से झुककर उसका शाना छुआ। कुछ नहीं। जवेरिया जल्दी से उठकर बैठ गई, मगर नुमान ने बेखुद होकर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और नरमी से बोला, आज मैं पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? जवेरिया ने एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में हसरत थी, बेबसी, दुख, गम, सब कुछ था। वो बेताब हो गया। जवेरिया, तुम्हें याद है मैंने बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। जवेरिया ने अस्बात में सर हिलाया मगर बोल नहीं सकी। फिर नुमान बोला, क्या तुम बदल गई हो? इस सवाल का वो जवाब नहीं दे सकी। नुमान ने पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं बदल गया हूँ? जवेरिया ने नफ़ी में सर हिलाया तो नुमान दुख से मुस्कुराया। तो अब क्या मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं कर सकता और वो तुम मुझसे छुपा रही हो? जवेरिया ने आंसू जब्त करते हुए उसे देखा। बचपन के कई वाक़यात उसकी नज़रों में आ गए, जब नुमान उसकी खताएं अपने सर लेकर हर बिन अलहमी से मार खाता रहता, मगर उसकी कोई बात रद्द न करता। उस दौर को याद करके वो धीरे से मुस्कुरा दी, भीगी हुई आंखों और लबों पर तबस्सुम। ये अंदाज बड़ा हसीन था, जैसे बारिश के बाद शफक के रंग बिखर गए हों। नुमान उसे देखता ही रह गया। उस लम्हे उसे दिल चाहा कि उसे सीने से लगा ले, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। जवेरिया का चेहरा अपने हाथों की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसकी मोहब्बत में शबाब की तलब नहीं थी। वो बुल हविस मर्दों की तरह उसे महबूबा बनाकर खेलना नहीं चाहता था, बल्कि उसने बचपन से लेकर आज तक उसकी परस्तिश की थी, उससे मोहब्बत की थी, ताकि वो ज़िंदगी के तवील सफ़र में उसका हाथ थाम कर चले तो ये पाकीज़ा जज्बात उसके कामयाब सफ़र के ज़ामिन हों। वो चंद लम्हे मोहब्बत से देखता रहा, फिर बोला, जवेरी, मैं आज सफ़र पर जाने वाला हूँ। इराक? जवेरिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर खुद ही खफीफ सी हो गई। नहीं, अरब की तरफ। नुमान ने कुछ ना समझते हुए कहा, मैं जफीर में एक तिजारती मंडी कायम करना चाहता हूँ। हम शाम और इराक से माल खरीद कर
अरब कबीलों को फ़रोग़ करेंगे। इससे हमारे कबीले की अहमियत बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए दीगर कबाइल का ताउन ज़रूरी है, लिहाजा मैं उनका दौरा करना चाहता हूँ। जवेरिया ने कुछ न कहा। वो नुमान के इराक न जाने के तसव्वुर से बुझ सी गई थी। नुमान चंद लम्हे हैरत से उसे तकता रहा। आज उसकी रवानगी के जिक्र पर जवेरिया ने किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। फिर वो अफसरदा सा हो गया, मगर फिर खुद को संभाल कर बोला, जवेरिया, तुमने बताया नहीं? क्या बताऊं? जवेरिया ने चौंक कर उसे देखा, जैसे कुछ जानती ही ना हो। न जाने वो किस तसव्वुर में गर्क थी। नुमान ने खुद ही पूछा, तुम्हारी आदत क्यों बदल गई है जवेरी? मैं तो खुद भी बदल गई हूँ, जवेरिया ने गैर इरादी तौर पर कहा और बेताब होकर रो दी। नुमान हैरत ज़दा से उस फिक्रे के मायने और उसकी हालत पर गौर करता रहा। फिर वो मायूस से अंदाज में उठा, उसे आराम की तलकीन की और कमरे से बाहर आया। काब उसका सामान और घोड़ा तैयार कर चुका था, लिहाजा वो हर्ब बिन अलहमी और कबीले के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को सलाम करते हुए रुखसत हो गया। 2 हफ्तों का ये सफ़र बड़ा अजीब था। अपने मकसद की तकमील के लिए कबाइल में जा जाकर लोगों को अपना हमनवा बनाना, सफ़र करना उसका काम था। मगर इतना थक कर भी जब रात आती तो आराम से सोने की बजाय जवेरिया का अफसरदा चेहरा तसव्वुर में आकर उसके जज्बात में हलचल मचा देता। उसका दिल चाहता उसका दुख खुद रख ले। फिर वो सरदार मक्का कसा से मिला, जिन्होंने उसका मकसद जानकर बड़ी हौसला अफजाई की। वादा किया कि इस वर्ष जब अरब के तमाम कबाइल मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए जमा होंगे तो वो उनसे अहद लेंगे, नुमान की पूरी मदद करेंगे। गर्ज ये कि नुमान ज़फ़र याब घर लौटा। उसने ताइफ से गुजरते हुए जवेरिया के लिए बेशुमार चीज़ें खरीदी, क्योंकि पिछली मर्तबा जब वो ताइफ से खाली हाथ घर लौटा था तो जवेरिया ने सख्त लान तान की थी, मगर इस बार घर आकर उसे शदीद मायूसी हुई। जवेरिया में अब जिंदगी की कोई उमंग बाकी न रही। वो चारपाई पर आंखें बंद किए यूं पड़ी हुई थी, जैसे उसकी रूह भी उसके जिस्म का साथ छोड़ गई हो। नुमान ने देखा वो बुखार से बेहाल थी। फिर काब ने बताया कि वो अक्सर रोती है और हर्ब बिन अलहमी के इसरार के बावजूद ग़िज़ा और तफरी सब तर्क कर चुकी है। इस तब्दीली पर परेशान हर्ब बिन अलहमी भी था, मगर नुमान का तो सुकून ही गारत हो गया था। उसने कबीले के सबसे काबिल तबीब को तलब किया। जवेरिया ने इलाज भी करवाया, तंदुरुस्त भी हो गई, मगर खुद को बदल नहीं सकी। नुमान से बात करते हुए वो पहले वाला अंदाज नहीं था। वो हंसती बोलती, मगर सब कुछ दिखावे के लिए। नुमान महसूस करता कि इसके दिल से वो जज्बा मिट गया है। तब वो प्यार से पूछता, कभी खफगी और नाराज़गी का इजहार भी करता, मगर सब बेसूद। जवेरिया जैसे जीते जी दुनिया छोड़ चुकी थी। शायद वो सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहती। नुमान उसकी मोहब्बत से कभी फैज़याब न हो पाता अगर अमार नामी उस मुसाफिर की हकीकत खुल न पाती। तकरीबन 6 महीने के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो अमार के कबीले में आमद हुई। वो काफ़ी अरसे बाद आया था। उसके आने की खबर जवेरिया को तो हो ही गई थी। जाहिर है वो उसकी कई दिनों से मुंतज़िर जो थी। अब की बार दोनों की धड़कनें बेहंगम हो रही थी। दोनों ही अपने दिल में जज्बात का तूफान कैद किए हुए थे, और अमार जो इतने अरसे बाद आया था बिल्कुल भी बदला नहीं था। उसके अंदाज में वही वालिहानापन था। जवेरिया की उदासी और बेचैनी उसे उसकी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। अमार ने यहाँ 1 हफ्ते के लिए क़याम करना था। जवेरिया बेताब थी कि कब उससे तन्हाई में 2-4 बातें करने का मौका मिलेगा। बिलाखिर वो लम्हा भी आन पहुँचा जब झील किनारे अमार उसी अंदाज में उसे मिला। जवेरिया हैरान हुए बिना न रह सकी, क्योंकि अब की बार उसने इश्क का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया कि जवेरिया का दिल धड़कना भूल गया था। अमार ने कहा था कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता है। जवेरिया इन जज्बों से नावाकिफ़ तो न थी। नुमान से कितने अरसा वो इन्हीं जज्बों की तालिब रही थी, मगर नुमान के जज्बात कभी भी अल्फाज का रूप नहीं धार सके। अमार जो आज बात करने आया था, शायद जवेरिया को उससे तवक्के नहीं थी। अमार गहरे पानियों में देखता हुआ बोला, जवेरिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे इश्क करती हो, जान गया हूँ मैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा
کہ میں تم سے جدا ہوا ہوں، لیکن جیسے تم لوگوں کی کچھ روایات ہیں، ہمارے قبیلے کی بھی کچھ رسمیں ہیں، اور ان رسموں کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ تم لوگ اپنی ذات کے علاوہ شادی نہیں کرتے، اور ہم اپنی مخلوق کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمار کی بات پر جویریہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ مخلوق؟ جویریہ کا انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ عمار آگے بڑھا، گھوڑے سے اتر کر اس کے قدموں میں جھک گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، جنات کے قبیلے اسرافیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم لوگوں کا باقی خاندان عراق میں ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لینے آیا ہوں، اس میں تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن تم شاہ جنات کی منظور نظر بن چکی ہو، عمار نے کہا اور ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نعمان جو کہ دور سے ہی یہ منظر کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگا، مگر جھیل تک آتے آتے عمار اور جویریہ کا عکس وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے جویریہ اس قبیلے میں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی عمار نے دوبارہ جفیر کا رخ کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔